morning, dear students. This is Manisha Sajeesh, your English teacher. Children, now take out your English reader book and open chapter 7, A Fun Weekend. I hope all of you have understood what I taught you yesterday in this chapter. और पेज नंबर 67 आप सबने रीड किया होगा. So today I will read and explain you page number 68 and 69. So let's start reading. So the first word is ALL. All of you keep your finger on this word. ALL. All. All my cousins and I played hide and seek. So this is a famous, very old game, hide and seek. And everybody played this game. One is a seeker. One is a seeker, and who is a seeker? One who finds, and the others go and hide themselves. So the one who seeks means he is trying to find someone. Seeks means क्या होता है? To find, किसी भी चीज को ढूंढना. और hide means छिपना. So what happened? I and my cousins decided to play hide and seek. And who was a seeker? Nitin was a seeker. He stood at the corner and shut his eyes. तो नितिन कौन था? सीकर, जो सबको ढूंढेगा. तो नितिन ने क्या किया? वो एक कॉर्नर पर खड़ा हो गया और उसने अपनी आईज को क्लोज किया. ऐसे ही तो खेलते हैं ना हाइड एंड सीक गेम. आदित्य hid behind the tree. आदित्य कहाँ जाकर छिप गया? Hid means छिपना. कहाँ? Behind the tree. I hope everybody knows in, on, under, behind. ये सब मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर में पढ़ाया है ना. तो behind means पीछे. तो आदित्य कहाँ जाके छिपा? पेड़ के पीछे. Priya and Mona climbed up the tree and sat on the branch. प्रिया और मोना कहाँ जाकर छिप गए? वो ट्री के ऊपर चढ़कर वहां पर एक ब्रांच के ऊपर उसकी जो टहनी होती है वहां जाकर छिप गए. अमन hid inside the doll house, leaving the dolls outside. और अमन कहाँ जाके छिपा? एक डॉल हाउस में. डॉल्स तो आप सबने ही देखी हैं. उसने सारी डॉल्स को बाहर किया और वहां जाकर छिप गया. I hid under a bench. और मैं कहाँ पर छिपा? जो बच्चा हमें ये स्टोरी बता रहा है वो बच्चा कहाँ जाकर छिपा? अंडर अ बेंच, एक बेंच के नीचे. नितिन बिगेन लुकिंग फॉर अस. और जब सारे बच्चे छिप गए फिर नितिन ने क्या किया? सबको ढूंढना शुरू किया. Now when all of us hid ourselves, Nitin opened his eyes and started looking for us. We didn't move and kept quiet because if there is any sound, Nitin would come and find us. So what we did? We didn't move and kept quiet. So we have to keep quiet. Now the next paragraph. Suddenly, SUDDENLY, suddenly means all at once, achanak. Priya saw a big eagle flying over the tree. Suddenly, प्रिया ने क्या देखा? एक बड़ी सी ईगल, है ना, एक बर्ड होती है ना, बड़ी सी चील, उसको देखा. वो क्या? पेड़ के ऊपर से उड़ती हुई जा रही है. So children, if you remember, मोना एंड प्रिया वर सिटिंग ऑन द ब्रांच. मोना और प्रिया कहाँ जाके छिपे थे? आपको याद है? पेड़ के ऊपर, एक ब्रांच पर, टहनी पर. Children, that was not a good idea of hiding, because if you hide at such a place and if something happen or you fall down, then you might break your bones. तो बच्चों, हम कोई भी गेम खेलते हैं तो हमें ऐसी जगह नहीं छिपना चाहिए जहाँ से हमें चोट लग जाए, जहाँ हम ऐसी जगह छुप जाएं कहीं हम फंस जाएं, है ना.
या जैसे पेड़ पर अचानक से हम नीचे भी गिर सकते हैं, तो हमें गेम खेलना है लेकिन फुल सेफ्टी के साथ। सो Priya and Mona were hiding on the branch of a tree, and suddenly what happened? A big eagle flying over the tree. फिर क्या हुआ? She screamed. SCREAMED, screamed. Screamed means shouted, चीखना। वो इतना डर गई, जब आप डर जाते तो आप चिल्लाते हो ना, ऐसे करके, तो वो इस तरह से वो जोर से चिल्लाई। And climbed down the tree. और क्या हुआ? वो पेड़ से जंप करके नीचे आ गई। क्योंकि जैसे ही उसने चील को देखा वो एकदम से डर गई। इतना भी टाइम नहीं था उसके पास कि वो बहुत आराम से नीचे उतरती, तो वो जल्दी में क्या कूद गई। हाँ, so there was no time to get down easily, so what she did, she climbed down. और जब वो नीचे एकदम से उतरी, she ran along the fence. FENCE, fence means boundary. आप देख रहे हैं ना पिक्चर में, देखो ब्रिज के आसपास जो फेंस है, वुडन फेंस जो होती है ना, आप सब ने देखा होगा, आप सबके घरों के आसपास भी फेंस होगी। तो she ran along the fence and fell into the pool. Oh no, she fell into the pool. क्या हुआ? वो इतना डर गई कि वो जोर से फेंस के सहारे भाग कर आई, और वो जल्दबाजी में क्या हुआ, पानी में गिर गई, पूल में। Next paragraph. Seeing this, all of us forgot our game and rushed to help her. RUSHED, rushed. Rushed means ran quickly. जैसे ही सबने देखा कि प्रिया पानी में गिर गई है, सबने अपना गेम बंद कर दिया, सब भूल गए अपने गेम को। एंड दे ऑल रश टू हेल्प हर। ऐसा होता है ना, अगर कभी अचानक किसी के चोट लग जाए तो सब दौड़ के जाते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं रश्ड, मतलब जल्दी से दौड़ के जाना। तो सब दौड़ के गए उसकी हेल्प करने के लिए। नितिन एंड मोना हेल्ड हर हैंड्स। और जल्दी से जाके नितिन एंड मोना ने क्या किया, उन्होंने उसके हाथों को पकड़ा जल्दी से। हेल्ड, क्या किया? पकड़ना। So children, whenever you go out with your parents, what you do? You hold their hands. So exactly, नितिन एंड मोना ने उसके हाथों को पकड़ लिया। Rest of us pulled them. और जब नितिन एंड मोना ने प्रिया के हाथों को पकड़ा, तो जो बाकी कजिन्स थे उन्होंने क्या किया, उन सबको पुल किया। पुल जानते ना, खींचना। प्रिया could easily come out. सबने मिलकर बहुत ही कोशिश की और प्रिया बहुत इजीली पूल से बाहर आ गई। तो बच्चों, पुल्ड मतलब खींचना, और पुश मतलब क्या होता है? धकेलना। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते होंगे तो वहाँ आपने देखा होगा ना कि वो डोर पर लिखा होता है PULL एंड PUSH, यानी कि उस डोर को क्या करेंगे आप, या तो पुल करेंगे, खींचेंगे, और या फिर उसको पुश करेंगे हम। सो now next, before she could cry, mummy wrapped her in a towel. WRAPPED, wrapped. Wrapped means covered. वो पानी में गिर गई तो पूरी भीग गई। तो बिफोर शी कुड क्राई, इससे पहले कि वो रोती, मम्मी ने क्या किया, जल्दी से उसको टॉवल में रैप कर दिया। आफ्टर शी गेव हर अ किस एंड कॉल्ड अस इन। उसके बाद मम्मा ने क्या किया, मम्मा ने प्रिया को बहुत प्यार से किस किया, है ना। मम्मा करती है ना आपको किस प्यार से, अच्छा लगता है ना आपको। शी गेव हर अ किस एंड कॉल्ड अस इन। और फिर मम्मा ने सबको अंदर बुलाया। जब सबने प्रिया की हेल्प करी, मम्मा ने भी उसको इतना प्यार किया, तो प्रिया को जो डर लगा था ना, वो उसका सब डर दूर हो गया। अब वो एकदम कंफर्टेबल थी। Next line. She served us all the snacks and cookies she had prepared. अब सब कुछ नॉर्मल हो गया। मम्मा ने क्या किया, मम्मा ने सब बच्चों को स्नैक्स दिए और कुकीज़ दिए जो मम्मा ने बच्चों के लिए बनाए थे। मम्मी ऑल्सो प्लेड आवर फेवरेट सॉन्ग्स। फिर मम्मी ने क्या किया, हमारे जो फेवरेट सॉन्ग्स थे वो लगाए। What a nice time we had eating and then dancing.
सो व्हाट अ नाइस टाइम, कितना अच्छा टाइम था। सबने डांस किया और सबने खूब अच्छे से जो भी मम्मा ने स्नैक्स बनाए थे उनको खाया। सर्व्ड, SERVED, सर्व्ड, गेव और सेट फूड और ड्रिंक। सर्व किसी को हम कुछ सर्व करते हैं, देते हैं कुछ भी ना, कुछ भी ड्रिंक या फूड, उसको बोलते हैं सर्व करना। सो चिल्ड्रन, नाउ what you all have to do, you all have to read this chapter. Read children, read again and again. बहुत सारी आप रीडिंग कीजिए। Read this chapter 7, A Fun Weekend, and read all these wow words written in this pink box. So children, I hope you all enjoyed this chapter. इस चैप्टर से आपको कुछ सीखने को भी मिला है कि जब आप कोई भी गेम खेलते हैं, कोई भी आप आपस में कोई भी गेम खेलते हैं बेटा, तो बी वेरी अलर्ट, और आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। और ये नहीं आप कहीं भी छिप गए, कहीं भी आपको चोट भी लग सकती है। तो कोई भी गेम खेलें, बहुत ध्यान से खेलें, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। सो चिल्ड्रन, टेक केयर, हैव अ गुड डे।